And you can do one thing now, like after these examples, you can get some more examples to practice how to balance equations. Then the next thing is types of chemical reactions. Understand one, once you are done with all these balancing part and exactly chemical reaction होती क्या है, physical change क्या होता है, chemical change क्या होता है, how do we write these chemical equations? Now the thing is, chemical reactions के भी type होते हैं, कितने कितने type होते हैं, you have to understand here. Or like कुछ important ones. The first one is called combination reaction. So as the name is suggesting you, sir, combination, कुछ combination हो रहा है यहाँ पे. Let's just see. Suppose you have A. A is a reactant and then you have B. These are two reactants that you have. जब ये दो reactants आपस में combine करेंगे and they will give you a product. Suppose AB. This type of reaction is called combination reaction. So, combination reaction क्या है? Two or more than two reactants are combining together to give you one product. Okay, let's just see some examples. Here you can see CaO, जिसे आप calcium oxide भी कहते हैं. Calcium oxide is reacting with water. So calcium oxide पानी की reaction हो रही है and you are getting CaOH whole twice. This thing is called calcium hydroxide. ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, quicklime and flakebline, ये कुछ इनके common names हैं which you which are confusing also because बच्चे quicklime और flakebline में confused हो जाते हैं. Let's understand. CaO एक कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने से बनने वाला कंपाउंड है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. जब ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दैट्स ऑल. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने बताया था कि जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहा होता है. बट यू कैन सी ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है. तो अंडरस्टैंड होता क्या है, जब भी दो आई कैन से दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं and what you are getting is just one new substance or one new product, then also that reaction can be called as combination reaction. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, you have CaO and you have H2O, both are compounds, but जब ये compounds reaction कर रहे हैं, they are giving you some other new compounds with new properties. That's why this reaction can also be termed as combination reaction. Then, after that, another example, you have burning of coal. Now, first of all, जब भी हम कभी burning बोल रहे होते हैं, it means oxygen is the one which is playing a very major role over there. For example, you have seen there is carbon obviously. Coal के लिए हम carbon भी लिख रहे हैं. Don't get confused over here. You have carbon. And क्योंकि यहाँ पे burning बोली गई है, you have not been told कि exactly कौन सा reactant है, कौन कौन से reactant है. क्योंकि कोल कहा गया है तो दिमाग में आएगा कि कोयले की बात हो रही है तो कार्बन ऑब्वियसली होना ही है वहां पर. एंड क्योंकि यहाँ पे burning की बात हो रही है, and you know that in our atmosphere you have plenty of gases, but out of all these gases, oxygen is the one which supports fire or which supports burning. So हम यहाँ पर ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे, नॉट नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग, ऑक्सीजन. So carbon plus oxygen is giving you carbon dioxide. You can see one element, another element is giving you one compound. Combination reaction. Then next you have exothermic reaction. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है समझना. When I was in the earlier part of the lecture, I told you reaction तब हो सकती है जब temperature change हो रहा हो. And then I said reaction में temperature increase भी हो सकता है और temperature decrease भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है समझना. As you can see, let's study with the example. You have methane here. CH4 is representing methane here, and then you have oxygen. What you are doing, आप मीथेन को जला रहे हो.
बट अगेन यहाँ पर तो लिखा हुआ है नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जैसे हम कोल के लिए सी लिख रहे हैं, क्योंकि कोल में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। जैसे ही नेचुरल गैस में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका मीथेन होता है। लेट मी राइट इट्स नेम, दिस इज कॉल्ड मीथेन। तो जब मीथेन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, समझना आपको भी एक चीज पता है, अगर आप पेट्रोल जला रहे होते हो यू गेट सम एनर्जी। आप जब डीजल जलाते हो, केरोसिन जलाते हो, लाइक सीएनजी, एलपीजी, इन सारी चीजों को बर्न करने से यू गेट सम एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस जो एनर्जी आपको दे रही हैं, यू कैन से ऐसी रिएक्शंस जो एनर्जी इवॉल्व कर रही हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, exothermic reactions are the chemical reactions which produce heat. So these are the reactions जो आपको heat provide करते हैं। So methane को burn किया, it means oxygen is being reacting, oxygen react कर रहा है वहां पे। You have got carbon dioxide gas, you have got water along with energy. One more thing is there, जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी, इट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज अ प्रोडक्ट देयर ना। इन मैंने अभी बोला कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, उन्हें आप क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अनदर एग्जांपल, यू हैव रेस्पिरेशन। हम सब सांस लेते हैं, respiration is also example of exothermic reaction. How? You just see here, हम जो खाना खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी उससे ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है, आई कैन से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करती है इन वेरी कॉमन वर्ड। यू हैव ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन जो कि हमने इनहेल करी है, हमें पता है कि जब भी कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज है एंड हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, हम एक्सहेल भी कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कैसे बनी ये गैस? So what happens when glucose and oxygen reacts? When these two react together, अब ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, water as well as energy. Again, energy is on the product side. That's why you will say that the reaction is exothermic reaction. Next one, you have endothermic reaction. So understand, ये दोनों just opposite हैं। Like exothermic में क्या हुआ? एनर्जी आपको मिली, लाइक आई कैन से एनर्जी इवॉल्व हुई। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी कि इस रिएक्शन को अगर शुरू करना है तो शुरू करने के पहले ही आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को। लेट्स इमेजिन ना, इफ यू हैव आइस क्यूब, सपोज इफ यू हैव आइस क्यूब, नाउ यू नो, अगर आपको इस आइस क्यूब को पिघला करके पानी बनाना है तो यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा ना। तो यू कैन से कहीं ना कहीं आइस क्यूब की मेल्टिंग भी जो है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, एंडोथर्मिक, बिकॉज आपको एनर्जी मिला नहीं बल्कि एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। सो यू हैव सम एग्जांपल्स आल्सो, बट देयर इज वन मोर थिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। लाइन का मतलब क्या है समझना। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द आइस क्यूब्स ओनली। यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, एंड जब कुछ आइस क्यूब्स यहाँ पर रखे हुए हैं, व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि आपने इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखा है और रूम टेम्परेचर एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब ज्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्ब होगी। अब क्योंकि जो आसपास की एनर्जी थी वो तो इन आइस क्यूब ने एब्जॉर्ब कर लिया है, डोंट यू थिंक यहाँ पर एनर्जी जितनी पहले थी उससे अब एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या करी है, आइस क्यूब ने एब्जॉर्ब करी है। दैट्स यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो, यू कैन डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आइस क्यूब लेना, उसे एक प्लेट में रखना रूम टेम्परेचर पर, एंड बस ना आइस क्यूब के आसपास अपना हाथ लेके, ये अगर आइस क्यूब है इसके आसपास अपना हाथ फिराना, यू विल बी एबल टू फील कि सच में आपको ठंडा महसूस हो रहा है। और ठंडा इसलिए नहीं है कि जो आइस क्यूब है वो ठंडक पहुंचा रही है,
इट्स बिकॉज वो जो आइस क्यूब है वो आसपास के जो हाई टेम्परेचर है, जो आसपास की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये पिघल भी रहा है। और क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पर तो एनर्जी कम हो गई ना, दैट्स व्हाई इट इज सेड सराउंडिंग्स की एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। नेक्स्ट यू हैव photosynthesis. These are some examples of endothermic reaction. Photosynthesis, evaporating liquids, जो liquids evaporate होते हैं. Then you have melting ice or dry ice also. Students used to play with that dry ice. So exact dry ice भी endothermic reaction ही है. It absorbs energy from the surrounding to provide you that coolness. One more thing is there. We have a trick to remember किस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और किस में एनर्जी इवॉल्व हो रही है. अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड एग्जिट. एग्जिट वर्ड सुना है? एग्जिट का मतलब होता है नॉर्मली वो जगह जहाँ से बाहर निकल सकते हैं. लाइक इफ यू आर इन अ मॉल तो एग्जिट जहां से लिखा होगा वहां से आप बेसिकली बाहर निकल रहे होंगे मॉल के. सो एग्जिट मीन्स किसी जगह से बाहर निकलना. लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर एक्सोथर्मिक. How you can remember exothermic? EX, EX. तो exit, exothermic. Exothermic में एनर्जी exit होती है, बच्चा endothermic वहां पे एनर्जी absorb होती है. Next you have decomposition reaction. So decomposition reaction में क्या होता है? First of all understand decomposition reaction को अगर मैं बहुत ही normal terms में बोलना चाहूँ तो I can say यहाँ पर एक compound है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं उनमें टूट रहा है. लेट्स सी reactions in which one compound decomposes in two or more compounds or elements is known as decomposition reaction. You have example also here. There is AB. AB is a compound and ये जो AB compound है ये क्या कर रहा है? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जिनसे मिल करके बना हुआ है A और B उसमें टूट जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा था CaO. दैट वाज व्हाट? व्हिच लाइन? अगर CaO किसी वजहों से, वी विल डिस्कस द रीजंस आल्सो, अगर ये CaO किसी वजह से टूट जाता है इनटू कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, you can call this reaction as a decomposition reaction. Why? Because decomposition reaction में जो आपका कंपाउंड है वो reactants like जिन चीजों से मिलकर के वो पहले बना हुआ था उन्हीं चीजों में टूट जाता है. But now the question is how is it that एक कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी पहले दो तीन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है अब वो वापस से टूट जा रहा है अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में? कुछ रीजन होगा. Yes, there are some factors. First thing is you can understand it is thermolysis or you call it thermal decomposition. अब ये क्या होता है समझना. this term है ये third. This term third means heat. तो होता क्या है जब भी किसी केमिकल इक्वेशन में और लाइक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं यू हैव अ कंपाउंड एंड उस कंपाउंड को आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. Then heating a particular compound चांसेस है कि जो उसके बीच में बॉन्ड है ना, जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड है, नाउ दीज बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन. व्हाई? हाउ? बिकॉज यू आर अप्लाइंग हीट ओवर देयर. हीट इज energy. Heat is a form of energy. So because of this heat energy, the bonds which are there between the elements of a compound, these bonds can be broken. Let's see the example. You have CaCO3, calcium carbonate. The common name is limestone. When this calcium carbonate is being supplied with some heat, this triangle which I have drawn, this is called delta, and ये यहाँ पर heat को represent करता है. Okay? So यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जो आपका calcium carbonate compound है, आपने जब इसको heat करा, ये टूट जाएगा into CaO, that is calcium oxide, which you call as quicklime also, and carbon dioxide. So हुआ क्या? You saw there was a compound calcium carbonate.
कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर, हम जब आगे फर्दर स्टडी कर रहे होंगे तो एक चीज बार बार नोटिस करने को मिलेगी, क्या? जब भी कभी रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट है ना, प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। सो व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन, और लाइक आप सोच रहे हो कि डिकम्पोजिशन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड whenever there is carbonate, chances are so many that product will contain carbon dioxide gas as well. Then another example is you have lead nitrate. लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, आपने जब यहाँ पे हीट सप्लाई करी, ये भी टूट जाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में। अगेन यू कैन नोटिस वन थिंग, जैसे यहाँ पे कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था, जैसे यहाँ पर नाइट्रेट है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है। अगेन दीज थिंग्स आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट यू कैन मेक अ गेस ओवर हियर। ओके, तो थर्मोलिसिस क्या है? लिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना। You can call these reactions as thermal decomposition, or you can call them thermolysis also. क्यों? Because in reactions में heat की वजह से एक compound अपने constituent elements में टूट रहा है। That's all.